Okay, so I'm going to start. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now I'm going to start today's session. And before going to start, I'll just going for recording. Okay. Okay. Hope the screen is visible to everyone. Hope the screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. So now today we will start about the edge computing which is applicable for IoT. Just a second. So edge computing applied in IoT. So as I told, the meaning of edge computing means instead of like just go through this diagram. Suppose here it is a device, this is the server, and this is another device which is connected with that device through this server. Okay, local server. Now this is the edge. This is the edge between device 1 and device 2, and whenever device 1 will transmit any signal to device 2, it will be passed through this server. So instead of processing the entire process by device 1, the server 1 will do that process. Like if I am going to send directly any information to you, then this is direct communication. And if I will send any information to you through seer, class representative, then that seer will act as an edge of the communication or edge between you and me. ओके सो इंस्टीड ऑफ प्रोसेसिंग के अगर मेरे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन तुम लोगों को सप्लाई करना है, ठीक है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि हर एक स्टूडेंट के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचा है कि नहीं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं. नाउ इफ age is introduced, if a CR is introduced in between the communication between me and you all students, then मैं क्या करूंगा, मैं उस सीआर को इंफॉर्मेशन दे दूंगा एंड रेस्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सीआर के अब वो समझेगा कि स्टूडेंट को कैसे पहुंचाना है, किसको कैसे समझाना है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सीआर. सो आई एम टेंशन फ्री. So that same work has been done by edge computing. So first of all, I have to know what do you mean by IoT edge computing? Okay. So first of all, how to define the edge computing on the basis of IoT? Okay. So this is nothing but the नेटवर्क और स्मॉल डेटा सेंटर. एज कंप्यूटिंग के लिए क्या चाहिए मुझे? नेटवर्क ऑफ स्मॉल डेटा सेंटर where critical data is stored. Data is stored and process locally. So this is the basic definition of edge computing in respect of IoT. That is, ये एक स्मॉल डेटा को स्टोर करेगा डेटा सेंटर, जहां पे स्मॉल डेटा एंड क्रिटिकल डेटा, दैट मीन्स अगर मुझे कोई सपोज इंफॉर्मेशन शेयर करना है विथ ऑल यू स्टूडेंट, तो हो सकता है सबका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास ना हो, ठीक है, सबका कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे पास ना हो, ठीक है, तो आई विल फॉरवर्ड दिस मैसेज टू सीआर एंड सीआर हैज द all the contact information like mail id, contact number as well as address with him or her, and after getting my information
it will be processed or it will be circulated to them, to the students, through the CR. So CR is total, is the data center having critical data like contact information, address information, name of the student. So in case of edge computing also, it will be a network of small data center. That means it doesn't deal with large data center. ठीक है, क्योंकि it will be quite impossible to process whenever large data will be transferred from local server. ठीक है, so that's why whenever we are going to define edge computing, first of all हम लोग के माइंड में दो चीज रहना होगा कि एज कंप्यूटिंग कहां पे होगा, लोकली. सेकेंड थिंग, डेटा, it will be a small data, small critical data center. ठीक है, ये दो चीज हमको एज कंप्यूटिंग में होना चाहिए. नाउ अब ये इसका काम आईओटी में क्या है, इसको आईओटी में कैसे हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, सो नाउ सपोज यहां पे मेरा आईओटी डिवाइसेस है, दैट इज यहां पे मेरा आईओटी डिवाइसेस का आईओटी डिवाइसेस. ओके, like your smartphone, smart watch, mobile, lamp, whatever you are going to connect with smart connection, that will be in this side. All smart devices. Okay, now ये सब का इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर रहेगा, दैट इज क्लाउड पे स्टोर रहेगा. सो नाउ एज कंप्यूटिंग का मेन फंडा क्या है, ये दोनों डिवाइस के अंदर एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेगा. सो अगर ऑल स्मार्ट डिवाइसेस डायरेक्टली विल बी कनेक्टेड टू द क्लाउड, तो दिक्कत क्या होगा, यहां पे तुम्हारा मॉनिटरिंग इश्यू है, सिक्योरिटी इश्यू है. क्योंकि अगर ऑल स्मार्ट डिवाइसेस, सपोज अगर मैं बोलूंगा कि दुमका में जितना भी स्मार्ट डिवाइसेस है उसको क्लाउड में कनेक्ट करोगे अगर, ओके, तो इट विल बी ह्यूज डेटा. ठीक है, तो समटाइम्स इट कैन बी हैपन के मेरा डेटा कभी कभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, बट ड्यू टू ट्रैफिक इन द सर्वर, ड्यू टू ट्रैफिक इन द रूट, ठीक, आई कांट एक्सेस दिस. तो टू ओवरकम दिस मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लोकल स्टोरेज बनाऊंगा, दैट इज गेटवे. लोकल गेटवे बनाऊंगा, गेटवे और लोकल स्टोरेज बनाऊंगा, माइक्रो डेटा सेंटर. ठीक है, ये गेटवे भी हो सकता है, माइक्रो डेटा सेंटर भी हो सकता है, जिसके थ्रू मेरा क्लाउड कनेक्टेड होगा. तो इसमें क्या होगा, सपोज यू आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग इन द गूगल, ठीक है, और गूगल के पास ये एज कंप्यूटिंग नहीं है, लेट इट बी. ठीक है, तो अगर हम google.com पे कुछ सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली विदाउट एज कंप्यूटिंग ये क्या करेगा, डायरेक्ट यूएस में जो उसका हेड ऑफिस है, जहां पे उसका मेन सर्वर है, मेन क्लाउड है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा. एंड ड्यू टू व्हिच क्या हो सकता है, कभी कभी देखोगे कोई साइट, in maximum cases the site related to the result of examination, वहां पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, whenever you are going to search your result, you will get the message के gateway your server error और too busy आता है कि नहीं, कभी कभी इवन पेमेंट गेटवे में भी तुम लोग Yes, का sir. आता है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, इट विल बी नॉट it will not follow the edge computing. Just
So if you are going to search anything from the Google main server or main storage cloud, तो क्या होगा, वहां पे ट्रैफिक क्रिएट होता है। तो गूगल ने क्या किया, छोटे छोटे जितने भी छोटे जितने भी देश है, ठीक है, ओवरऑल ऑलमोस्ट में क्या किया उन्होंने, अपना एक डेटा सेंटर खोल दिया। ठीक है, डेटा सेंटर क्या किया, उस कंट्री का क्या किया, जहां जहां मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहां पे तुम्हारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, वहां पे क्या किया, एक माइक्रो डेटा सेंटर खोल दिया। तो नाउ सपोज दुमका में रह के तुम लोग अगर कुछ सर्च करोगे, ठीक है, गूगल में, तो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको कनेक्ट करेगा माइक्रो डेटा सेंटर ऑफ द इंडिया। इंडिया में जितना भी माइक्रो डेटा सेंटर है, उसमें सबसे नियरेस्ट ऑफ जो दुमका या झारखंड को कवर करता है जो डेटा सेंटर, वो डेटा सेंटर में वो पास करेगा। तो ऑब्वियसली देखो ट्रैफिक बहुत हट गया। ठीक है, सो दैट इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एज कंप्यूटिंग, दैट इज माय प्रोसेसिंग स्पीड। एंड नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे गेटवे है, और जहां पे मेरा गेटवे है वहां पे सिक्योरिटी इश्यू है। तो अगर सपोज गूगल जीपे से तुम पेमेंट कर रहे हो और उसका गेटवे, मेन गेटवे सर्वर तुम्हारा यूएस में है, तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड द सेम सिक्योरिटी टू ऑल इट्स यूजर फ्रॉम अ सिंगल गेटवे। बिकॉज यूएस में देखो एक दिन में कितना जीपे होता है, ऑब्वियसली इन झारखंड, इन दुमका, many GPay transaction will be done in a single day at a same time। ठीक है, तो ऑब्वियसली फॉर वन गेटवे, मेन गेटवे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तुमको 36 या 24 पेपर्स एक सेमिस्टर में क्लियर करना है, ठीक है, तो तुम क्या हो, तुम कंसीडर यू एज अ गेटवे, तुम्हारा जो कनेक्टिंग डिवाइस है दैट इज कंसीडर्ड एज अ सब्जेक्ट, and now I am telling that you have to clear all your 37 or 38 papers in one semester। So obviously you will not focus equally to each and every subject। तो हम लोग क्या किया, छोटे छोटे गेटवे, लोकल गेटवे में उसको डिवाइड कर दिया। दैट इज फर्स्ट सेमिस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, सेकंड सेमिस्टर में 5 सब्जेक्ट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ और एट में जाके कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट में फोकस करना है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटवे, कि अगर मैं सभी चीज को एक ही गेट से पास करूं तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रैफिक होगा, सिक्योरिटी इश्यू होगा, सबको सेम टाइप का सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, दैट इज मैंने नहीं, एटलीस्ट जो आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनर है उन्होंने क्या किया, दैट इज छोटे छोटे लोकल गेटवे में डिवाइड कर दिए, कि दुंगा के लिए एक पर्टिकुलर गेटवे है फॉर दिस कनेक्शन बिटवीन क्लाउड एंड स्मार्ट डिवाइसेस, रांची के लिए एक है, धनबाद के लिए एक है। सो इसके लिए, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी इशू will be maintained। समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा सर। एक मिनट, कहां से आवाज कटा था? हेलो, यस सर। हाँ, आवाज कहां से कटा था? सर जहाँ जहाँ बोल रहे थे कि झारखंड के लिए अलग ये गेटवे है, ये सब। अच्छा अच्छा वहां से। अच्छा, तो देखो गेटवे क्या है, गेटवे का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों यूज होता है? यस सर। हाँ, तो देखो झारखंड के लिए तुम्हारा दुमका के लिए अलग गेटवे है, रांची के लिए अलग गेट है, ताकि एक साथ एक ही गेट पे ज्यादा ट्रैफिक जाम ना हो। अगर ज्यादा ट्रैफिक जाम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिक्योरिटी इश्यू विल नॉट बी मेंटेन प्रॉपरली एंड टू इट कांट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी डिवाइस एट इक्वल क्वालिटी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्या किया है, सिक्योरिटी इश्यू को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, छोटे छोटे हिस्सों में गेटवे को डिवाइड कर दिया है, एंड दैट गेटवे विल कनेक्टिंग योर डिवाइसेस टू द क्लाउड, एंड दिस इज टोटली डन बाय लोकली। ठीक है, ये जो एज कंप्यूटिंग का ये पोर्शन है, ये लोकली, दैट मीन्स व्हेनेवर आई एम गोइंग टू
consider the edge computing of IoT system in the Dumka, then it will only process or it will only connect all the devices with their cloud of Dumka region only. That is locally. It is totally locally done. Okay. So now types of edge computing. Now ये तो हो गया एज कंप्यूटिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्यों यूज होता है, कहां पे यूज होता है. ये सब क्लियर है. Okay. Now next is Yes, sir. टाइप्स ऑफ IoT. इसको हम एज कंप्यूटिंग, IoT एज कंप्यूटिंग, ठीक है. तो IoT एज कंप्यूटिंग में पहला क्या है, लोकल डिवाइस को कनेक्ट करता है, लोकल डिवाइस कनेक्शन. नेक्स्ट इज लोकल डिवाइस कनेक्शन मींस दुमका का जो एज कंप्यूटिंग IoT एज कंप्यूटिंग सेंटर है वो सिर्फ दुमका में जितना भी स्मार्ट डिवाइस उसको मिलेगा उसको कनेक्ट करेगा. नेक्स्ट इज लोकल डेटा सेंटर, लोकल डेटा सेंटर, डेटा सेंटर दैट मींस दुमका में जितना भी डेटा है वो उसको प्रोसेस करेगा. ठीक है. दैट्स व्हाई देखोगे अभी तो लोकल डेटा सेंटर को काम में लगा के बहुत सारा एप्स निकल रहा है. लाइक तुम लोग का बहुत सारा न्यूज ऐप है जो पर्टिकुलर दुमका, मसानजोर, तुम्हारा वो वहां पे जामताड़ा, ये सब रीजियन का न्यूज टेलीकास्ट करता है. दैट इज लोकल डेटा सेंटर, जहां का स्टोरेज डेटा मुझे ओनली लोकल एरिया का ही मिलेगा. ठीक है. तो एज कंप्यूटिंग में सेकेंड टाइप है लोकल डेटा सेंटर, where the IoT edge computing will provide storage capability for the local data. ठीक है. It will be provide storage local data. Third one is regionally located डेटा सेंटर. ठीक है. ये है बहुत सारे लोकल को मिला के एक रीजन बनता है. लाइक सपोज अगर मैं बोलूंगा कि दुमका का एक लोकल डेटा सेंटर है, ये लोकल डेटा सेंटर, लोकल डेटा सेंटर. ठीक है. ये है दुमका का. नेक्स्ट इज यहां पे तुम्हारा देवघर का, देवघर, ये देवघर का लोकल डेटा सेंटर, डेटा सेंटर. ये है तुम्हारा सपोज धानबाद का, धानबाद का लोकल डेटा सेंटर. ये है तुम्हारा रांची का लोकल डेटा सेंटर. एंड ओवरऑल ये तुम्हारा सपोज दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये सब मिला के ये टोटल जो एक कलेक्शन ऑफ लोकल डेटा सेंटर है, ये सब मिला के बनता है मेरा टोटल झारखंड का डेटा सेंटर. तो यहां से अगर मुझे इस लोकल डेटा सेंटर में सिर्फ दुमका का इंफॉर्मेशन स्टोर है, यहाँ में सिर्फ रांची का है, यहाँ पे धनबाद का है, यहाँ पे देवघर का है. ठीक है. तो नाउ अगर मैं टोटल इसको मिला के कलेक्टिव वे में देखूं तो इस सबको मिला के जो कलेक्टिव डेटा सेंटर है वहां पे क्या है, एंटायर झारखंड का डेटा सेंटर मुझे मिल जाएगा. सो दैट टोटल कंबाइनिंगली ऑल लोकल डेटा सेंटर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक रीजियनली लोकेटेड डेटा सेंटर.
डेटा सेंटर मिलेगा, जहां पे एक रीजन बेसिस का जितना भी डेटा है रिलेटेड टू दैट रीजन ओनली इट विल बी स्टोर्ड। जस्ट अ मिनट। হ্যাঁ বলো। না ক্লাস নিচ্ছি, তোমাকে আমি 10 মিনিট পরে ফোন করি। হুম। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ক্লাস নিয়ে 10টা 20 পরে ফোন করছি। হুম হুম হুম। Okay, now this regionally located data center will deal with the total data stored in the local data center of that particular region. समझ में आया? यस सर। लाइक तुम लोगों का जो ईसी डिपार्टमेंट है ये लोकल डेटा सेंटर है। टोटल जो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज है दो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सेमिस्टर, डिफरेंट ईयर्स, ये है तुम्हारा एक दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये रीजनली लोकेटेड डेटा सेंटर है। मैं अगर दुमका रीजनली लोकेटेड डेटा सेंटर का डेटा निकालूं तो मुझे ऑल स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। मैं अगर ईसी डिपार्टमेंट का 6 सेमेस्टर का डेटा सेंटर डेटा निकालूं तो मुझे ओनली डेटा रिलेटेड टू द स्टूडेंट ऑफ ईसीई 6 सेम ऑफ योर बैच आई विल फाइंड आउट। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल डेटा सेंटर एंड रीजनल डेटा सेंटर। ऑब्वियसली स्टोरेज स्पेस इन दोनों के बीच में अंतर है। इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज ज्यादा होगा या कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू लोकल डेटा सेंटर? लार्जर देन लोकल डेटा सेंटर। ठीक है, सो दिस इज 3 टाइप एज आईओटी एज कंप्यूटिंग। एक है लोकल डिवाइस कनेक्शन जहां पे मेरा ऑल डिवाइस का स्पेसिफिकेशन, लोकल डिवाइस का स्पेसिफिकेशन वहां पे रहेगा कि मेरे दुमका के अंदर कितना स्मार्ट डिवाइसेस है, आईओटी सपोर्टेड डिवाइस है, कंपेटेबल डिवाइसेस है, ऑल विल बी स्टोर्ड। ओके, नेक्स्ट इज लोकल डेटा सेंटर। कब कौन सा डेटा कनेक्ट होता है, किसका कनेक्शन टाइम कितना है, कितने कितना एमबीबीएस या कितना केबीपीएस या कितना जीबीपीएस डेटा रेट फ्लो हो रहा है, दैट इज स्टोर्ड इन लोकल डेटा सेंटर रीजनली इन दैट पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, टोटल जो डेटा है वो रीजनली लोकेटेड डेटा सेंटर में स्टोर होगा। नाउ नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी एज कंप्यूटिंग ऑफ एज कंप्यूटिंग। तो हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, तो सिमिलरली दैट ब्लॉक डायग्राम को हम अब डिटेल में लिखेंगे। सपोज यहां पे मेरा यूजर्स है, यूजर्स। ठीक है, तो यूजर्स को इंटरफेयर कौन करेगा? सेंसर, सेंसर्स। सेंसर्स के साथ कनेक्ट रहेगा प्राइवेट नेटवर्क, लाइक मेरा स्मार्ट वॉच का जो प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क। नाउ ये अब किस में जाएगा? दैट इज गेटवे एंड एज कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट यहां पे आएगा प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क। नेक्स्ट यहां से जाएगा तुम्हारा क्लाउड, क्लाउड और डेटा सेंटर। ये तुम्हारा मेन डेटा सेंटर है। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या होगा? ये जो है आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी एज कंप्यूटिंग, लाइक ये मेरा एज के हिसाब से काम करेगा। दिस इज एज। लाइक सपोज मैं अपने स्मार्ट वॉच के साथ अपना एसी कनेक्ट करूंगा, तो एसी एंड स्मार्ट वॉच बोथ विल बी अंडर दिस यूजर्स ब्लॉक, and it has both the devices have sensors which senses the availability, connectivity, तुम्हारा processing speed, all the
detail will be give provided through that sensor. Then it is directly connected to the private network. That is, my smartwatch only connect with my will only connect with the particular AC, that is private network, that is network between both of these device. Other network will not interfere. ठीक है. नाउ गेटवे और एज कंप्यूटिंग के थ्रू ये क्या करेगा, क्लाउड को एक्सेस करेगा. जो क्लाउड और डेटा सेंटर कनेक्टेड है गेटवे के साथ प्राइवेट पब्लिक नेटवर्क के थ्रू. लाइक अगर मैं जीपे करता हूँ, ठीक है, किसी भी चीज को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो क्या होता है, सेंसर लगा रहता है कि हाँ वो मेरे ही अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, लिंक है मेरे अकाउंट के साथ. और वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन द जीपे, गूगल पे और पेटीएम और व्हाट एवर द ऑनलाइन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन, वहां पे क्या होता है, एक सेंसर दिया रहता है. दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज. दैट इज ओनली यू कैन एक्सेस दैट प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट इज प्राइवेट नेटवर्क. ऑब्वियसली तुम अगर जीपे से तुम्हारा मनी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम लोग कौन से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो. अगर ये पता चल गया तो क्या होगा, आई विल गोइंग टू फिश योर अकाउंट, फिशिंग करूंगा, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे अकाउंट के जो नेटवर्क है वहां पे एंट्री ले सकूं और तुम्हारा जो अकाउंट है एक्सेस कर सकूं. टू prohibited with this kind of tendency, private network is used. That is only only two port of the connection will be connected. That is one port यहाँ पे, one port two. ये दोनों के बीच में ही ये कनेक्शन रहेगा. दूसरा कोई आएगा तो उसको वो एंटर नहीं करने देगा इस नेटवर्क में. सो नाउ इट इज कनेक्टेड टू द पेमेंट गेटवे. Now payment gateway also connected with the private public network. अगर मैं कोई फेसबुक में फोटो अपलोड करता हूं तो गेटवे पब्लिक गेटवे है, ठीक है, नॉट प्राइवेट. मैं अगर मॉनिटरी ट्रांजेक्शन करता हूं तो नेटवर्क जो है दैट इज प्राइवेट नेटवर्क विल बी यूज. दैट इज वहां पे कुछ पासवर्ड लगेगा, वहां पे कुछ ऑथेंटिकेशन लगेगा. दैट कनेक्शन इज टोटली कनेक्टेड बाय कनेक्टेड कनेक्ट योर गेटवे टू द क्लाउड और डेटा सेंटर. ठीक है, तो ये है टोटल आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी एज कंप्यूटिंग. नाउ इट इज क्वाइट सिमिलर टू योर नॉर्मल आईओटी आर्किटेक्चर, बट यहाँ पे मुझे फोकस कहाँ पे करना है, इस एज पे फोकस करना है. आई हैव टू डिस्कस अबाउट डिटेल ऑफ दिस एज. जो मैंने किया अभी के एज का काम क्या होता है, दोनों को कनेक्ट करवाना, ठीक है. तो वो क्या करता है, यूजर के साथ डेटा सेंटर को कनेक्ट करता है. तो थ्रू दिस आर्किटेक्चर योर आईओटी एज कंप्यूटर विल बी डिजाइन्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my point? Yes, sir. Okay. Now tell me one thing that is out of the box topic. कि हम लोग ये एज कंप्यूटिंग को उतना महत्व या एज कंप्यूटिंग या गेटवे को उतना फोकस क्यों कर रहे हैं? एनी आइडिया? स्मॉल डाटा यहाँ स्मॉल, हाँ बोलो. और लोकल एरिया के लिए ये है. दैट इज जहां पे भी आईओटी का क्यों यूज करते हैं, कोई भी आर्किटेक्चर या कोई भी प्रोटोकॉल, सबसे ज्यादा फोकस देना किसके ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर. क्योंकि ये देखो प्रोसेस फास्टर प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे एक लॉन्ग वे को वो क्लियर करते हुए डेटा सेंटर को एक्सेस करेगा, ठीक है. तो इसका मेन जो है सिक्योरिटी. दूसरा है, सिंस आईओटी डिवाइस, इफ आईओटी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ क्लाउड, योर डेटा विल बी शेयर. You are going to share your data with that cloud, and if there is a data, then data analysis will be there. Data analysis, ठीक है. And if there is a data analysis, that means your all data will be analyzed. तो obviously अगर suppose let it be, मैं अगर किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा तुम्हारा फोन दो, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को क्या करोगे, अपना कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट जो है उसको तुम पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे, एंड देन यू विल गिव योर फोन टू मी.
ठीक है। या सपोज तुम्हारा रूममेट तुमसे फोन मांग रहा है, तो ऑब्वियसली तुम लोग क्या करोगे, अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड डेटा है उसको अलग एक फोल्डर में रख के उसको पासवर्ड सिक्योर करोगे, या फोन देने से पहले तुम लोग क्या करोगे, डेटा को हटा दोगे। ठीक है। इन मैक्सिमम केसेस डिनायल विल बी द प्रोसीड्यूर, कि अगर तुम्हारा रूममेट बोलता है तुम्हारा फोन दो, तो तुम लोग पूछोगे क्यों चाहिए। ठीक है। तो अगर कॉल के लिए होता है तो यू कैन गिव, अगर वो बोलेगा नहीं मैं तुम्हारा फोन देखना चाहता हूँ, ठीक है, डेटा एनालाइज करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली यू विल नॉट गिव योर फोन। ठीक है। सो मैं ये कंडीशन हटा दे रहा हूँ कि तुम लोग फोन दोगे। ठीक है। यू ऑल आर टू मच लिबरल के योर रूममेट कैन एक्सेस योर फोन, तो यू विल गिव योर फोन टू योर रूममेट। तो नाउ you are going to protect your personal data to be accessed by your roommate. So that means whenever data analysis will be there, all the data related to that devices will be shared. तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, फिल्ट्रेशन डालना चाहिए कि एक बार में वो डेटा इजी एनालिसिस ना हो। ठीक है। और कोई भी एनालाइज ना कर पाए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गेटवे एज कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनालाइज द डेटा सिक्योरली। ठीक है। सो डेटा एनालिसिस विल बी मच मोर सिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट इज अवॉइड ट्रैफिक इन network. So this is the three reasons why we are using your edge computing. And the fourth, last but not the least, that is obviously storage. Storage. कि अगर मेरा मेन सर्वर तुम्हारा स्टोरेज करता है, हर एक डेटा को स्टोर करता है, तो ऑब्वियसली बहुत ही लार्ज स्पेस लगेगा। ठीक है। तो वही अगर छोटे छोटे रीजनल या छोटे छोटे लोकल गेटवे या माइक्रो डेटा सेंटर हम लोग अगर लगा देते हैं, तो क्या होगा, जो भी डेटा स्टोर होगा वो माइक्रो डेटा सेंटर में स्टोरेज होगा, मेन सर्वर में उतना लोड नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली अगर लोड नहीं आएगा तो क्या होगा, स्टोरेज कैपेबिलिटी विल नॉट बी यूज्ड इन ह्यूज अमाउंट। सो टू मिनिमाइज द स्टोरेज वी आर यूजिंग IoT एज कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज, ये एक मैटर करता है इकोनॉमिकली, दैट इज कॉस्टिंग। अगर मैं यूजर को डायरेक्ट डेटा सेंटर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली हर एक यूजर अगर कनेक्ट करेगा, सपोज गूगल में तुम लोग कुछ सर्च कर रहे हो या जीपे से कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो हर एक डिवाइस, हर एक अकाउंट अगर यूएस के डेटा सेंटर को एक्सेस करेगा, ऑब्वियसली योर कॉस्ट विल बी वेरी हाई, बिकॉज इंटरनेशनल कनेक्शन विल बी देयर। ठीक है। if international connection will be there, then my transmitter should be more powerful, that it can be accessed through the main US data center। ठीक है। तो दैट्स वाई क्या होगा, मेरा कॉस्टिंग बढ़ेगा। लाइक अगर तुम लोग सपोज कनेक्ट करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन को किसी बाहर के ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के साथ, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू पे मच मोर मनी rather than local broadcaster। ठीक है। तो दैट्स व्हाई कॉस्टिंग विल बी वेरी लो इन केस ऑफ IoT एज कंप्यूटिंग विद कंपेयर विद द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर यूजर एंड मेन डेटा सेंटर। तो ये भी इसका एक इशू है कि लोकल कॉस्टिंग जितना होगा तुम्हारा, अगर मैं डायरेक्ट डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट करूंगा तो उसका कॉस्टिंग बहुत ही हाई है। ठीक है। सो दैट इज द main 5 reasons how why we are using IoT edge computing। ठीक है। तो इसको अगर हम और इलेबोरेट करेंगे, बहुत सारा तुम्हारा रीजन है। उसमें से हम लोग अगर बोलेंगे कि IoT एज कंप्यूटिंग, तो पहला क्या हुआ, फर्स्ट वन इज मेरा सिक्योरिटी, फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी, second one is secure data analysis,
Third one is traffic, low traffic in the network, low traffic in network. Fourth one is storage, that is minimum storage is required. Fifth one is costing, ठीक है. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, ये एक कंसिस्टेंसी. दैट मीन्स मैं अगर दुमका का न्यूज अगर मैं खोलूंगा, दुमका का न्यूज खोलूंगा तो ऑब्वियसली मुझे दुमका का ही न्यूज मिलेगा हर टाइम. ठीक है, दुमका में क्या हुआ, तुम्हारा दुमका के रीजन इलाका में क्या हुआ, मसानजोर में क्या हुआ, ठीक है, फिर और एक आता है रानीश्वर में क्या हुआ. ठीक है, वही अगर मैं ओवरऑल ऑल इंडिया न्यूज चैनल खोलूंगा लाइक आज तक, CNN या IBN, ठीक है, या TV18, जो भी नेटवर्क है, जो नेशनल टेलीविजन न्यूज ब्रॉडकास्टर चैनल है, वहां पे अगर खोलूंगा तो वहां पे दुमका का न्यूज मिलने का चांस बहुत ही कम है. ठीक है, सो ये कंसिस्टेंसी नहीं होगा कि एक दिन में दुमका का न्यूज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, तो मासांजोर में रास्ते में किसी बकरी को कार से उड़ा दिया, यह न्यूज में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. दैट इज इन केस ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग चैनल में. लेकिन दुमका का जो लोकल न्यूज चैनल है वहां पे ये खबर आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी. मैं अगर दुमका का लोकल चैनल खोलूंगा तो मुझे दुमका रिलेटेड न्यूज मिलेगा ही मिलेगा. बट मैं अगर मेन डेटा सेंटर, दैट मीन्स इंडिया बेसिस में अगर मैं पकड़ू तो ऑल इंडिया जो न्यूज चैनल है, नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, वहां में से मैं किसी भी चैनल को खोलूंगा तो मुझे दुमका का खबर आ भी सकता है, मुझे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. दैट इज कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा. तो एज कंप्यूटिंग में क्या है, वो कंसिस्टेंसी है. नेक्स्ट इज क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स, and that was the last one, that is quick response. तो सपोज तुम लोग, अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि कॉलेज अगर एक एज कंप्यूटिंग है एंड यूनिवर्सिटी इज द लोकल, यूनिवर्सिटी इज द मेन सर्वर है, तो अगर मैं बोलूंगा कि क्लास रिलेटेड कुछ भी इशू अगर तुम यूनिवर्सिटी में उठाते हो और सेम इशू कॉलेज में उठाते हो, किसका रेस्पॉन्स ज्यादा क्विक आएगा? किसका रेस्पॉन्स ज्यादा क्विक सर आएगा? कॉलेज कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में जो है लोकल है, तुम लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है. यूनिवर्सिटी का जो कनेक्शन है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है. ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट एनी डिवाइसेस with your IoT compatible device, any smart device with your IoT compatible device, तो ऑब्वियसली लोकल जो डेटा सेंटर है उसका रेस्पॉन्स क्विक होगा इंस्टेड ऑफ response from the main data center. So that is the main 7 advantages or 7 reason for which we are using IoT edge computing. Okay, clear? Is it clear? यस सर. Okay, so टाइम कितना हुआ तुम लोगों का? तो तुम लोगों का 10-20 से क्लास है ना सुजीत सर का? यस सर. ओके ओके, आज के लिए यहाँ तक. ठीक है, next I will take your class in the next scheduled class. So in next class we will discuss how the data will be analyzed and monitored using IoT edge computing. ठीक है, so I am going to conclude this session right now. Okay, so thank you all.